اگر مجھے کہا جائے کہ کسی تھائرائڈ، ہارٹ، بلڈ پریشر کسی کا زیادہ ہو رہا ہے، ارتھرائٹس کا ایشو ہے، فیٹی لیور چل رہا ہے، ویٹ بہت زیادہ ہے، اور اس طرح سے یہ چند بیماریوں کی اگزامپل میں نے دی ہے، اس طرح سے اور بھی بہت سی بیماریاں کسی پرسن میں ہیں، تو میں نے اگر ان پرسنس کو ٹھیک کرنا ہو، ان پیشنٹس کو، تو میں سب سے پہلے ان کے کس آرگن پہ کام کرنا سٹارٹ کروں گی؟ تو میں کہوں گی کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیور کو پکڑوں گی، ان کے لیور کو میں ٹھیک کرنا سٹارٹ کروں گی۔ جب لیور ٹھیک ہوگا تو خود بخود ہی ان کی بیماریاں بھی ریورسل کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لیور جو سا ہے وہ 400 سے زیادہ ہماری باڈی کے جو کیمیائی عمل ہوتے ہیں، جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو مختلف ہمارے آرگنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ جا کے وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان پروسیجرز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اب جب لیور ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ جو 300-400 کیمیائی عمل جسم کے اندر ہو رہے ہیں وہ سب کے سب ڈسٹرب ہوں گے، وہ سب کے سب جون سے ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہوں گے، اور لوگ اپنی ان بیماریوں کو، جس طرح سے ارتھرائٹس ہے، اپنے ان ارتھرائٹس کو لے کے اس سے ریلیٹڈ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیچھے اس کے ایشو جہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے وہ لیور ہے۔ لیور میں کچرا آیا ہے، لیور اس کا صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہے، تو وہاں پہ صحیح انہوں نے وہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا شروع کرنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس بیماری تک پہنچنا تھا ریورس کرنے کے لیے۔ لیکن آپ لوگوں کو اب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا لیور، اب لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم کو کیسے پتہ چلے گا ہمارا لیور ٹھیک ہے یا کتنے % خراب ہو چکا ہوا ہے، ہمیں ٹیسٹ بتاؤ۔ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں ٹیسٹ بتا دیں جس سے ہمیں جو ہم کرا سکیں اور پتہ چل سکے کہ ہمارا لیور، ہم اپنے لیور کو چیک کر سکیں کہ کتنے % کام کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو ٹیسٹوں کے پیچھے مت بھاگا کریں، اپنے سائنز اور سمٹمز کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ آج کے ویڈیو میں یہی بتانے والی ہوں کہ کون سے سمٹمز اور سائنز ہوتے ہیں جو آپ لوگ خود سے پہچان کر اپنی باڈی کے بارے میں ہر پرسن جان کے وہ سمجھ سکے گا کہ میں لیور کی کس کنڈیشن میں کھڑا ہوں اور مجھے اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ اور آج کے ویڈیو میں 3 ڈرنکس بھی بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گے اپنے لیور کا کچرا صاف کرنے میں، اس پہ جو برڈن آیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لسن یور باڈی شو۔ میں اپنی نیوٹریشن، ہیلتھ، ڈیزیزز، ایکسرسائز اسٹڈی کی بیس پہ لوگوں کی ہیلتھ کو امپروو کر رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی آئیں ہمارے ساتھ، ویڈیوز کو سنیں۔ میں جب لکھتی ہوں نا کہ فالو آل ویڈیوز، آپ لوگ چاہتے ہو کہ کسی ایک ویڈیو میں اس کا سلوشن مل جائے، ایسے نہیں۔ میں کیا کر رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو ڈائٹ چینج کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا لائف سٹائل چینج کر رہی ہوں۔ ہر ڈائٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور وہ تبھی پتہ چل سکے گا، میں آپ لوگوں کو نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس پرسن کی ڈائٹ کہاں پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جب مجھے سنیں گے، آپ لوگ جب سنیں گے سارا کچھ، تو آپ لوگوں کو خود جان پائیں گے کہ اچھا ہم لوگ اس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ویڈیوز سننا پڑیں گی آپ لوگوں کو۔ اور بچوں کے لیے بہت زیادہ، رامین ابھی گزری ہے تو بچوں کے لیے بہت زیادہ وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ڈائٹ کا بتائیں بچوں کے لیے، کہ ہم بچوں کو کیا لنچ دے کے بھیجیں، کیا بچوں کو کھلائیں۔ یہ جب آپ لوگ ویڈیو سننا سٹارٹ کریں گے، آپ لوگوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کرنا کیا ہے۔ اب بچوں کا کسی دن ہوتا ہے کہ وہ ناشتہ کرنے کا نہیں دل چاہ رہا ہوتا، کیونکہ ان کا پہلا کھانا ہی ابھی ڈائجسٹ نہیں پراپر سے ہوا ہوتا، یا اس کی انرجی لیول ابھی اس کھانے کے، رات کے کھانے کے انہیں ملے ہوتے ہیں، تو مت فورس کریں، ٹھیک ہے؟ رامین نے ابھی مگ پکڑا ہوا تھا، اس کا موڈ نہیں تھا آج ناشتہ کرنے کا، اس کو سمپل تھوڑا سا میں نے کہوا دیا ہے، اس میں 1 چمچ مکھن ڈالا ہے اور وہ اسے دے کے میں بھیج رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فورس نہیں کریں بچوں کو، اور یہ تبھی آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے گی جب آپ لوگ ویڈیوز کو سنیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ لیور کو آپ لوگوں نے اوور ایٹنگ کر کے پہلا کھانا ہضم نہیں ہوا ہوتا، دوسرا کھانا اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں، میدے نے بھی کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ 3 ہمارے جو ہم کھاتے ہیں نا، اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے میدے کا، ہمارے لیور کا اور ہمارے پینکریاز کا۔ یہ 3 جو چیزیں ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کی یہ 3 چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ انسان بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے، اپنے ان 3 چیزوں کو اگر آپ لوگ فوکس کر لیں گے تو۔ اب اس کے میں سمٹمز بتانے والی ہوں، سائن بتانے والی ہوں۔ پہلا سائن کیا ہے؟ نو سائن، کہ اس کا کوئی سائن نہیں ہوتا، اندر لیور خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور اس کے لیے، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا کوئی سائن نہیں ہوتا، ایون کہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ آپ لوگوں کو یہ لیور جب 90% خراب ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ ٹیسٹوں میں آتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ بھاگ کے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب تک آپ ٹیسٹ میں
आएगा ही नहीं, अंदर ख़राबी चल रही है, आपके अंदर मसला फैला हुआ है। आप आज वीडियो सुनेंगे ना समझ आ जाएगी कि इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन जब आप टेस्ट कराने जाएंगे अभी वो 90% 80% डैमेज नहीं हुआ होगा, इसलिए वो आपके रिपोर्ट में नहीं आएगा। आपकी रिपोर्ट ओके का साइन देगी कि सब लीवर का ओके है, लेकिन अंदर ख़राबी चल रही होगी। तो इसका क्या है कि ये टेस्टों में तब आता है जब ये डैमेज हो चुका होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को जो पेन है उससे आप लोगों, और ये वाली पेन जो सी है ना, वो ये नहीं होगी कि नॉन स्टॉप हुई जा रही है। उसकी रीज़न भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये पेन आप लोगों के होगी दाएं कंधे में, पीछे ये शोल्डर में, और ये बैक साइड पे, और दाएं में पसली के नीचे, ये यहाँ पर, ठीक है, पसली के नीचे जहाँ पे आपको पेन फील होगी। यहाँ पे हमारा दाएं तरफ इधर लीवर होता है, ठीक है, नीचे इसके बाइल होता है। अब पित्ता जिसे कहते हैं, बाइल पित्ते में होता है, ठीक है, उसके नीचे पित्ता होता है, और वहाँ पे वो बाइल और सारी गेम यहाँ पे चल रही होती है। अब ये पेन आप लोगों को इन जगहों पे, और किसी को ये पीछे दाएं तरफ पीछे बैक में, किसी को हो सकता है यहाँ पे ना हो, बैक में हो। ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं आप लोगों को। किसी को भी इन पॉइंट्स में से किसी एक में भी पेन हो सकती है। क्या वजह है? जो हमारा जो लीवर है, जिगर है, वो एक कीमियाई मादा पैदा करता है जिसे बाइल कहते हैं। बाइल क्या होता है? उसने हमारी फैट को डाइजेस्ट कराना होता है। जो हम लोग खाने में जो हम चिकनाई खाते हैं, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि होल एग खाएं, जिसके लीवर में इशू होगा, बाइल में इशू होगा, वो होल एग, वो जर्दी समेत अंडा खाएगा तो उसके पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको वो हज़म ही नहीं कर पाएगा। मैं कहती हूँ कि आप लोग देसी घी, मक्खन खाएँ, कोकोनट खाएँ, और ये सारी चीज़ें मैं खाने को तो कह रही होती हूँ आप लोगों को, ये हर कोई नहीं खा सकता है। उसकी रीज़न कि उसका जो सा है, यहाँ पे ख़राबी है, यहाँ पे इस सिस्टम में। अब यहाँ पे समझे कि उसको पेन इन पॉइंट में से कहीं पे भी कैसे हो सकती है। लिवर जो सा है वो प्रोड्यूस करता है बाइल को, ठीक है, और बाइल ने जाके स्टोर होना होता है पित्ते में, जो कि ये उधर लीवर के नीचे है। पित्ते में जाके वो बाइल स्टोर होता है, और जब हम लोग कोई खाना खाते हैं जिसमें फ़ैट होता है, गुड फैट या बैड फैट जो भी आप लोग कह लें, जो तली हुई चीज़ें खाएंगे वो तो बहुत ही आला काम कर रहे होंगे ना, तो वो जब खाएंगे तो फिर उसने ना, वो पित्ते ने कंसनट्रेट करता है, ऐसे मूव करता है, और वो उसमें से वो बाइल निकलता है। उस बाइल ने जाके फिर वो छोटी आंत में वो जाता है। छोटी आंत में जाके उसने उसको जो चिकनाई है उसे छोटों हिस्सों में कन्वर्ट करना होता है। क्या करता है बाइल? ये पेपर है ना, मैं इसके टुकड़े कर रही हूँ। ये बाइल ने क्या काम करना है? उस बड़े पीसेस को इतने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, और ये छोटे छोटे पीसेस तब जाके हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हो सकेंगे, हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकेंगे। यानी कि गुड फैट खाया है आप लोगों ने, अंडे की जर्दी खाई है, भैया इससे जिस्म का हिस्सा भी तो बनना चाहिए ना। तो वो बाइल आएगा वहाँ पे, जब आप खाएंगे तो वो वहाँ पे कंसनट्रेट होके, वो गाढ़ा होता है ना, जब ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना लीवर में, तो ये जब उसमें जाता है हमारे पित्ते में तो ये गाढ़ा होता है। जब ये कंसनट्रेट का मतलब होता है थोड़ा पतला होके, ये पित्ते का काम है उसको थोड़ा सा पतला करके, तो फिर वो उसको जाके वो छोटी आंत में छोड़ता है, तो वो इंटेस्टाइन में जाके तो फिर वो उसको तोड़ता है हमारी फैट को, और वापस जो उनसे दोबारा से लीवर में वो जाता है, ठीक है। बाइल ने यूज़ हो गया, जितना यूटिलाइज होना था वहाँ पर अपना काम करके, ये वापस जाके उसने एब्जॉर्ब होना होता है लीवर में। अब पेन मुख्तलिफ जगहों पे कहाँ पे होगी? हो सकता है कि किसी की बच्चों की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रही है। रामीन अपना फुटबॉल लेके जा रही है, वहाँ पे ये जो इसको टाइम थोड़ा सा मिलता है, ये वहाँ पे गप्पे शप्पे लगाने और वो अपने लंच जाके कैंटीन से ख़रीदने की बजाय ये अपनी एक्टिविटी को प्रेफर कर रही होती है, भाग दौड़ रही होती है, खेलने में ये प्रेफर कर रही होती है अपने बच्चों को इस तरह की। ये मैंने इसे नहीं कहा, ठीक है, ये इसे मैंने अच्छी चीज़ें बताई हैं, ये खुद इसने पिक की हैं कि मैं इस टाइम पर ये करूँगी, और ये चीज़ें, ये अपने बच्चों को आप लोगों ने इसकी तरफ लेके आना है। ये आप लोगों को कहना ना पड़े बच्चों को। अब मैं अपना सुबह से उठी हूँ, अपने काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है मेरी बच्ची है वो रेडी हो रही है, उसको ट्रेनिंग उसकी कर दी गई है, उसे समझा दिया गया क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, वो खुद से अपने डिसीजन ले रही होती है, ठीक है। बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है आप लोगों ने भी। अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए जो आती हैं ना औरतें अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली, तो वो माएँ जॉब भी कर रही होती हैं, और मुझे इतना तरस आ रहा होता है अब, क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ। माएँ अब जॉब करें, बच्चों को देखें कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को पूरा करें, वो तभी आपकी ज़िंदगी आसान बन पाएगी। आप लोग अपने बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। ट्रेन करने में जो टाइम लगना है वो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी की ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, आपको रोज़ रोज़ की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब जब लीवर से उसने आना है पित्ते के अंदर, तब
उस टाइम पे जो ये पाइप है, डक्ट है जौन सी, वहाँ से उसको वहाँ पे वो कचरा है, ठीक है, जो बाइल वहाँ पे प्रोड्यूस किया है लिवर में। लिवर क्या है, एक पौनी की तरह है। एक पौनी की एग्जांपल इसे ले लें, जिस तरह पत्ती पुनते हैं तो नीचे चाय आ जाती है, तो पत्ती जौन सी है वो कचरा है। तो लिवर जौन सा है उसने ब्लड को फिल्टर करना होता है और हर कचरे को अपने पास रोक के रखना होता है। जब वो भर जाता है कचरे से तो वो उसको भी जाने देता है कचरे को। जब वो कचरा उसमें जाएगा बाइल के साथ ही, तो फिर वो वहाँ पे पेन करेगा, वहाँ उन नालियों में फंसेगा, वहाँ पे आपको पेन होगी। उसके बाद जब इसने इंटेस्टाइन में जाना है, यहाँ से नीचे जब वो जाएगा छोटी आंत में, जब हम खाना खाएंगे फैट वाला, तो वहाँ पर फिर पेन होगी उस टाइम पे। वहाँ से रिलीज़ होते हुए हो सकता है वो वहाँ पे लोगों का रिलीज़ ही नहीं हो पाता, वो इतना गाढ़ा होकर वहाँ पे पत्थरियाँ बनी हुई होती हैं, तो वो वहाँ से रिलीज़ ही नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आया कहाँ से है, ये लिवर से आया है। तो मेन चीज़ यहाँ पे हमें अपने पहले लिवर पे काम करना है, ठीक है। पित्ते को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, भी सारा आप लोगों को समझाऊंगी। आज के वीडियो में आप ये समझें कि हमने लिवर को किस तरह से काबू करना है। ये एक जो भला बना हुआ है हम लोगों के लिए, और डाइजेशन, जो ब्लोटिंग, ये वो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए, आंतों के जो पेशेंट हैं उन सब के लिए भी, जो मैदे के पेशेंट हैं उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतों को लेके देखा जा रहा होता है, आंतों का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर आपका खाना मैदे में ही डाइजेस्ट होना चाहिए था, इसको डाइजेस्ट होकर छोटे पीसेस में कन्वर्ट होकर नीचे बड़ी आंत में जाना चाहिए था। ना तो वहाँ पे मैदे में तेज़ाब है उसको हजम करने के लिए, और ना ही आप लोगों की छोटी आंत में बाइल आ रहा है इसको पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए, आपके फ़ैट को। फिर फैट और बाकी का जो खाना है, प्रोटीन और जो आप लोग सलाद और सब्जियाँ खा रहे होते हो भर भर के, वो सारे का सारा वैसे ही गैर हजम शुदा जाता है, और वहाँ पर जाके कब्ज़ और वो इश्यूज़, वहाँ पर जब कचरा फंसा रहता है ना आंतों में, फिर वहाँ पर आप लोगों की आंतों में अंदर वो बैड बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। और इसके अलावा जो कहते हैं हमारे ज़ख्म हो गए हुए हैं, अल्सर हो गए हुए हैं, वहाँ कचरा पड़ा पड़ा तेज़ाबियत हो गई हुई है, ठीक है। अल्कलाइन और तेज़ाबियत ये मुनासिब मिकदार में हर जगह पे एनवायरनमेंट बॉडी को चाहिए होता है। जब कोई एनवायरनमेंट अपनी लेवल से हिल जाता है तो फिर वहाँ पे ख़राबी कर रहा होता है, ठीक है। अब दूसरा साइन आप लोगों ने, ये पेन से आप लोगों ने असेस करना है। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि ये आप लोगों के लिवर की और बाइल के, ये कहीं पे भी ये इशू हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों ने टेस्टों पे और डॉक्टर्स के पीछे नहीं भागना है, आप लोगों ने खुद से अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को चेंज करना है और इसको ठीक करना है। क्योंकि इसके लिए ना बाहर के मुल्कों में टटका यूज़ किया जाता है, जो फैट नहीं ना डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव वो है सप्लीमेंट है। और हर चीज़ का हम लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू नहीं ट्रीटमेंट ढूंढना है, हम लोगों ने डाइट के थ्रू। यही तो मैं चेंज ला रही हूँ, और यही तो मैं अपने नॉलेज को जो इम्प्लीमेंट आप लोगों पे करवा रही हूँ कि हम लोगों ने डाइट से बिल्कुल इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़, भूख ना लगना। अब मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, वो कहती हैं कि जी हम तो मुश्किल से 2 खाने बहुत मुश्किल से खा पाती हैं, और वो भी हम लोगों को भूख नहीं लगी होती, दिल घबरा रहा होता है, फिर याद आता है कि हमने तो कुछ खाना भी है, हम लोगों के एनर्जी लेवल डाउन जा रहे होते हैं, तो हम लोगों को फिर पता लगता है कि हमें भूख लगी है, या हमने खाना में भूख फिर भी नहीं लगी होती, हमें तब समझ आती है कि हमें कुछ ना कुछ खाना है। तो अब ये कोई अच्छा साइन नहीं है भूख ना लगना, इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा रही हूँ, आप लोगों की क्रेविंग को कंट्रोल करेगी, वो आप लोगों की जो काली है आपको पड़ जाती है कि कुछ भी नज़र आता है तो आप खा लेते हो। मेरी बेटी ने ये खुद मुझे बताया कि मामा पहले क्या होता था कि मैं जो सा फ्रिज में जाती थी, ऐसे मैं उठाती थी, ब्रेड पड़ी होती थी, मैं कोई भी चीज़ उठा के खाना शुरू कर देती थी। अब उसमें इतनी सेंस आ गई है कि हमने ऐसे ही उठा के हर चीज़ को खाना शुरू नहीं कर देना, एक ख़ास टाइम होना चाहिए हमारे खाने पीने का, एक टाइमिंग होनी चाहिए, हमने पहले क्या चीज़ खानी है, ये सब चीज़ें जो सी हैं ना ये काउंट करती हैं। अच्छा, बात भूख की हो रही है कि आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को ना बीच में एग्जांपल्स दे रही होती हूँ समझने के लिए कि आप लोगों को, और ये चीज़ें आप लोगों को समझना आसान बना देती हैं, ठीक है, जो मैं बीच में छोटी एग्जांपल्स ऐड कर देती हूँ। आप लोगों ने, अब भूख नहीं लग रही है, अब जब भूख लगनी चाहिए, जब आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है 15 घंटे की, 14 घंटे की, 16 घंटे की है, तो आप लोगों को उस टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल फील होना चाहिए, भूख का एहसास होना चाहिए। जब आप, और खाना भी तभी हजम होगा, आप खाएंगे तो देखना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को 16 घंटे के बाद भी भूख नहीं लग रही है, और उसका मतलब है कि उनका जो पहले वाला खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, वो अंदर आंतों में, मैदे में वैसे ही घूमी फिरी जा रहा है, और वो जाके आप लोगों को, वो एपिटाइट को, आप लोगों की भूख को वो ख़त्म कर रहा है। और लिवर उसके पीछे क्या है, क्यों घूमी फिरी जा रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसको किसने कंट्रोल करना है, लिवर ने,
ठीक है। लिवर मेटाबॉलिज्म आपका कंट्रोल करता है, तो वो अब सही तरह से काम नहीं लिवर कर पा रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो मसला कहाँ पे है? मैदे में नहीं है, मैदे को बाद में देखना, मसला यहाँ पे लिवर पे है। लिवर का मेटाबॉलिज्म आप लोगों का स्लो है, तो इस वजह से आप लोगों को भूख नहीं लग रही है। उसके बाद जो सा चौथा साइन है वो है जॉइंट पेन, ठीक है। लोग यहाँ पर जॉइंट पेन के पीछे भाग रहे होते हैं, विटामिन डी को देख रहे होते हैं, इसके अलावा विटामिन K2 को देख रहे होते हैं और सारी चीज़ों को वो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे लिवर का फंक्शन, कि जिन लोगों का लिवर का इशू है उन लोगों को भी जॉइंट्स में पेन होगा, बिल्कुल होगा, घुटनों में भी पेन होगा, वो सारे इश्यूज उनके वैसे ही चलेंगे। खा के देख लें आप लोग विटामिन D3, नहीं आराम आएगा जब तक आप लोग अपने लिवर पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, जो जोड़ों में, जो पाँव के हम ज़रा सी वॉक भी नहीं कर पाती हैं औरतें बेचारी, तो वो अपने लिवर पे काम करना शुरू करें, लिवर को आसानी दें। लिवर आसानी पैदा होगी लिवर के लिए तो आप लोगों के ये इशू सॉल्व होना शुरू होंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गई, जॉइंट पेन के लिए आप लोगों ने कोई जॉइंट पेन फार्मूलेज नहीं खरीदने हैं, आप लोगों ने अपने लिवर पे काम करना है, ठीक है। विटामिन डी एक मुनासिब मिकदार तक एक लेवल उसका लेना चाहिए, उसको मैं नहीं कह रही हूँ कि भर भर के आप डोज लें। मैंने विटामिन डी पे भी वीडियो की है, वो भी आप सुन लीजिएगा लाजमी, कि उसकी डोज छोटी लेनी है। पहले ही अंदर उसको क्या है, विटामिन डी को क्या है, उसको किसने हमने खा तो लिया है, उसको अब हज़म कौन कराएगा, मेटाबोलाइज कौन कराएगा? एक तो मैदे का तेज़ाब अच्छा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसने जाकर लिवर ने मेटाबोलाइज करना है। अब देख लें इसका कम्बिनेशन, विटामिन D3 लिवर के काम के लिए ज़रूरी है। लिवर जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से मेरी वो वीडियो सुन के समझ आ गई होगी। T4 को T3 में जो इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म जो कन्वर्ट करता है वो विटामिन D3 की मौजूदगी में करता है। अब लिवर को विटामिन D3 लिवर के काम के लिए ज़रूरी है और लिवर चाहिए विटामिन डी को हजम कराने के लिए। विटामिन डी का जो सा है ना हाजमा थोड़ा लिवर करेगा, थोड़ा जाके किडनी में होगा, किडनी में भी, ठीक है। जो लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी डोज लेते जाते हैं वो अपनी किडनी को भी ख़तरे में डाल रहे होते हैं अगर आप लोगों के अंदर सिस्टम सही काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने उसकी छोटी डोज लेनी है जितनी काबिल हज़म हो सके। मेरा वो वीडियो भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है, विटामिन डी डोज वाला भी सुन लीजिएगा। 2 वीडियो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि हमने कितनी डोज लेनी है। उसके बाद जॉइंटिस, ठीक है, आंखों में जो पीलापन आ जाता है जब आपका कचरा, मैंने कहा कि इसने बाइल ने प्रोड्यूस होकर लीवर से सीधा उधर जाना है, आपके पित्ते में जाना है। अब ये जब पित्ते में नहीं जा पाता है, हमारे ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है कचरा, तो फिर वो आंखें भी इन लोगों की जो सी है ना वो बिल्कुल सफ़ेदी उनकी नहीं रहती है, उसमें पीलापन और वो कचरा आ जाता है। इससे भी आप लोगों अपनी आंखों को अपना देखा करो, ठीक है। अगर आप लोगों की आंखों में ये रेडिश और ये थोड़ा येलोपन ये थोड़ा सा चल रहा होता है तो इसका मतलब है कि कचरा जिस्म के अंदर घूम फिर रहा है। तो उस फ़ौरन आपको अपने ध्यान जाना चाहिए कि हाँ लिवर में थोड़ा इस तरह से हो रहा है, हमें अभी अपने लिवर को देखना है, ठीक है। लिवर बिल्कुल ठीक भी चल रहा होता है, बीच में जब आप लोगों की डाइट्स ठीक नहीं रहती, आप लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता तो उसमें फिर बीच में भी खराबी आ जाती है। तो इस वजह से चेक करते रहा करें अपने इन साइंस को। उसके बाद आप लोगों को जब खाना ये आपके न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट ही नहीं होंगे तो फिर ये भूलना और डिमेंशिया और ये सारा ब्रेन फॉग ये सब चीज़ें भी चल रही होंगी। इसका मतलब है इन लोगों पे के भी लिवर में इशू है। अपने लिवर को सीधा करेंगे तो आप लोगों का अच्छा ये अब इसका कनेक्शन देखें ब्रेन के साथ किस तरह से है, ठीक है। ये डिमेंशिया और ये चीज़ें भूलना ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ब्रेन फॉग जो बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मैं कहती हूँ ब्रेन हमारा, हमें शुगर ग्लूकोज ब्रेन के लिए नहीं चाहिए होती कि हम हर टाइम उसको ग्लूकोज और वो शुगर वगैरह देते रहें। हमारा ब्रेन जो सा है कीटोन्स पे चल सकता है। कीटोन्स क्या होते हैं, ये फैट को जब बर्न होती है ना फैट, उसके नतीजे में ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे ब्रेन को चलाने के लिए बहुत काफ़ी होते हैं, ठीक है। मैं 16-17 घंटे की जो फास्टिंग करती हूँ और मेरा ब्रेन का काम चल रहा होता है नॉन स्टॉप, घर पे ऑफिस जाके ये सब कुछ चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मेरा कीटोन्स भी चल रही होती हूँ, मैंने जो अपना गुड फैट लिया होता है उसको जो उनसा है, जब मुझे 4 साल पहले जब ये सारे मेरे इश्यूज़ थे मैं नहीं खा सकती थी फैट को, खाते ही मेरे ये वाला पेन थोड़े थोड़े मुझे स्टार्ट हो जाते थे। तब फिर जब मैंने स्टडी किया तब मुझे समझ आई कि ये इश्यूज़ क्या थे पीछे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसका कनेक्शन समझ आ गया ना कि आपके फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको वो आप कहेंगे कि मैं तो खाई भी जा रही हूँ, साजिदा ने कहा था गुड फैट ऐड करो डिमेंशिया को ख़त्म करने के लिए, ब्रेन फॉग को ख़त्म करने के लिए, मैं तो खा भी रही हूँ लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। तो आपका लिवर उसको नहीं अच्छे से काम कर पा रहा है और उसको इन पीसीज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको समझना है। अब लॉस ऑफ एनर्जी के एनर्जी ही नहीं होएगी, जब ज़ाहिरी बात है कि जब आप लोग खाएं पिएंगे और आप लोगों को वो लगेगा ही नहीं, आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बनेगा, तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगा। और मैं लोगों को जब कंसल्टेंसी के लिए आ रहे होते हैं, मैं कह रही होती हूँ कि सुबह आप लोगों ने उठ के वर्कआउट करना है, वो कहते हैं हम कैसे वर्कआउट करें, उठ के बैठ के उनका मैसेज आ जाता है अगले दिन, दिल ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर आप लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता करके सारी एफर्ट करनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर नहीं भी हिम्मत हो रही होती, उठो, एटलीस्ट सूरज के साथ उठना बैठना सीखें, ठीक है। उठें सुबह के टाइम, अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाएं, उसके बाद जाके आप लोग वो बैठें सूरज में, जाके थोड़ी सूरज की 10 मिनट किरणें लें। नहीं कुछ हो पा रहा मत करो, जस्ट डीप ब्रीदिंग कर लो, ठीक है। वो आप लोगों को 40% काम आपका वो सीधा करना शुरू कर देगा। जब आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिनों में देखना आपके एनर्जी लेवल ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। इतना आप कर लें। अगर आप लोगों को नहीं वर्कआउट के लिए बिल्कुल भी एनर्जी मिल रही है, 70 साल की, 65 साल की, 60 साल की मेरे साथ फीमेल्स आ रही हैं और वो इस तरह से उनके साथ इशू चल रहे हैं, यहाँ पे यंग लोगों के साथ चल रहे हैं, तो इतनी एज के लोगों को तो कोई बात नहीं, ऐसे हो रहा है, अब हो चुका हुआ है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सुबह उठ के सूरज के साथ 10-15 मिनट जाके सूरज के सामने बैठें, डीप ब्रीदिंग करें, अपना मॉर्निंग ड्रिंक पिएं। 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। आप वहाँ बैठने से आप चलने की तरफ आ जाएंगे, चलने से फिर आप लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आप लोग ये चीज़ें करें तो सही। अब जो थायराइड का प्रॉब्लम, जिनको थायराइड का इशू है उन सबका लिवर ख़राब है, ठीक है। वो किस खुशफहमी में मत रहें कि हम लोगों को ये शायद हमारा सिर्फ थायराइड हार्मोन हमारा काम नहीं कर रहा है, आप लोगों का थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, एक्टिवेट नहीं कर रहा, इनएक्टिव कर रहा है, तो वो आप लोगों को, जब आप लोगों सब लोगों का लिवर इशू है, ठीक है, इन लोगों का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इनको थायराइड का इशू आया है। अब ये इस तरह से और भी बहुत से चीज़ें हैं जिनको आप ये सारी समझ के, थकावट और लॉस ऑफ एनर्जी और ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझ लेना है कि हमारे यहाँ पर इशू है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने मैंने कहा था कि आप लोगों को 3 ड्रिंक में ऐड करवाऊंगी, ठीक है, इसमें आप लोगों ने करने हैं। अब इसमें लेमन वाटर, ठीक है, लेमन वाटर जो सा है वो इतनी इसकी स्टडी बेस, इतनी इसकी रिसर्चेज हैं कि मैं कहती हूँ कि लिवर को ठीक करने के लिए हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को डाइट के थ्रू ही इसे हम लोगों ने ठीक कर सकते हैं, और ये होता भी डाइट के थ्रू ही ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें अगर लेमन वाटर का इनटेक आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ वीडियो पे आ रहे हैं, नॉर्मल साइज़ का 1 लेमन आप लोग लेंगे, फ्रेश वाटर में उसे डालेंगे, हिमालयन पिंक साल्ट उसमें डालेंगे, तो वो आपके बाइल को भी प्रोड्यूस कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप लेमन के छिलकों को बॉयल करके वो भी स्टीम करके ग्राइंड करके उसको भी आप आधा छोटा चम्मच ऐड कर लेंगे, तो ये आपका एक लिवर डिटॉक्स ये बनेगा। जो आप लोग वो स्मूदियाँ पूरा दिन पी रहे होते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर ये मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों को चाहिए। 2 गिलास ये 2 घंटों में सुबह ख़त्म करें। एक ड्रिंक आपका ये हो जाएगा। दूसरा ड्रिंक आप लोगों ने अदरक का लाजमी यूज़ करें। अब अदरक को आप लोग इसका कहवा भी बना सकते हैं अदरक का, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, बहुत केयरफुली उन्होंने चलना है, ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, ठीक है, अदरक। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खाने के बाद जो पी रहे होते हैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो चाय ग्रीन टी ले रहे होते हैं, उसी में इसको ऐड कर लें। तीसरा ड्रिंक ग्रीन टी है। ग्रीन टी आप लोगों के लिवर को डिटॉक्स करेगा, ठीक है। इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट, कुछ ना करें, इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, ठीक है। एक तो लेमन वाटर को, दूसरा अदरक को। अदरक को आप ग्रीन टी के साथ ही मिक्स कर लें, ठीक है। जो ग्रीन टी आप बनाएंगे उसी में अदरक को कर लें, या अदरक का अलग से कहवा बना के पीना चाहते हैं। ग्रीन टी किसी के पास अवेलेबल कहीं पे है नहीं है या नहीं है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे शुरुआत आप लोग करें अपनी, ठीक है। तो आप लोग जो गर्म नहीं पी सकते, यहाँ पर इश्यूज औरतों को आ रहे होते हैं कि हमारा मैदे में बहुत गर्मी हुई है, हम गर्म चीज़ें नहीं पी सकते, तो वो पता क्या करें, उन लोगों ने क्या करना है, ग्रीन टी को लेके ना रात को 1 छोटा चम्मच ग्रीन टी लेंगे, 1 गिलास पानी में उसे डालेंगे, छोटा सा पीस अदरक का लेके फ्रिज में रख देना, ठीक है। अगले दिन जब खाना खाने के 2 घंटे बाद आप लोग वो अपना ठंडा ड्रिंक वो पी सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये डिटॉक्स में बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इसे समझने की कोशिश करें कि कहाँ इशू है और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।